Solubility is nothing but the amount per unit volume of a saturated solution at a specific temperature. Now what does it mean? It means that the particular amount of a solute present in a saturated solution per unit volume. Okay, so remember this, at a specific temperature. Okay, now what does it mean? Solubility is nothing but a property of a solute, right? So solubility is a property. Okay, remember this. So here again written what is meant by solubility. The solubility of a solute is its maximum concentration. Remember this, the solubility of solute is nothing but what is its maximum concentration. Okay, so again here is also written that it amount per unit volume of saturated solution. Okay, so saturated solution. Remember now what does mean by saturated solution? Saturated solution means the solution in which the maximum amount of solutes are present, or you can say the higher amount or higher concentration of solutes are present in the solution is called as what? Saturated solution. Okay, so solubility of solute is nothing but what? It's nothing but its maximum concentration. Okay, what does solubility indicates? Solubility indicates the maximum concentration of a solute. Remember this. So again, similarly, as you can see here, the definition of solubility and concentration is quite similar. So that's why it is expressed in units mole per liter. Remember, unit mole per liter. So solubility is having unit mole per liter. Okay, so next we will go for Henry's law. Now what is mean by Henry's law? So Henry law Henry law states that the solubility of a gas in liquid is directly proportional to the pressure of the gas over the solution. Okay, so means solubility of a gas in a liquid. Suppose you have a liquid, सपोज हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे लिक्विड लिया है. ओके, सो लिक्विड हम लोगों ने लिया एक कंटेनर में और उसके ऊपर सर्टेन गैसेस है और हम लोगों को उस गैस को डिसॉल्व करना है. ओके, सो द सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट गैस is directly proportional to the pressure of the gas over the solution. मतलब जितना ज़्यादा हम प्रेशर अप्लाई करेंगे उस गैस के ऊपर उतना ज़्यादा उस गैस की सॉल्युबिलिटी उस लिक्विड सॉल्यूशन में क्या होगी, बढ़ती जाएगी. जैसे कि आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं, एज यू कैन सी दैट solubility and pressure is directly proportional, right? They have relation directly proportional, right? So that's why we can say that S is equals to KHP. So what is KH? KH is nothing but proportionality constant, you can say, or it is nothing but Henry's law constant. So where S is what? Solubility of the gas in mole per liter. P is nothing but what? P is nothing but pressure of the gas in bar. Remember, bar is what? Bar is nothing but the unit of pressure. Okay, and KH is what? KH is nothing but the proportionality constant, or we can say that it is nothing but Henry's law constant. Remember this, in exam it is asked that define Henry's law constant. Okay, so let's just go for define what is mean by Henry law constant. Okay, so for Henry law constant, we can see from the relation that if we make this P to go on left hand side, then the equation will look like this. Okay, so the equation will look like this. Okay, so let's just see. So S divided by P. Now what is the unit of S? S का unit क्या है? S is nothing but mole per liter. And what is the unit of P? P is nothing but pressure. So pressure का unit क्या है यहाँ पे? Bar. Okay. So mole per liter divided by bar. So bar will go to the numerator side. Okay. So bar will go to the numerator side, and this equation will become what? Mole per liter per bar. Okay. Right. So mole per liter per bar. Where, okay, now let's just define when P is equals to 1, when our P is equals to 1, KH equals to what? S. Okay, easy.
because S is equals to KHP. So when P is equals to 1, KH will become S, right? So now let us define what is meant by KH. Now in this equation, as you can see, S is what? S is nothing but solubility of the gas in a liquid, right? And KH is what? Henry law constant when P is equals to 1, right? So P is what? Pressure of the gas, which is 1. Okay. So now we can define KH, which is nothing but Henry law constant, that KH is solubility of the gas, which is nothing but S, solubility of the gas in a liquid when its pressure over the solution is 1 bar. Okay, simple है, because KH equals to S when P is equals to 1, so we can say KH is nothing but solubility of the gas in a liquid when its pressure over the solution is 1 bar, right? Okay, so now let's proceed further. Okay, so let me explain you in detail that what is meant by Henry's law. Okay, now see here. Okay, so suppose this is your regular Coke, you can say, or the regular beverages which you drink. Okay, so as you can see that जब कंटेनर जो हमारा बॉटल जो है वो क्लोज होता है, राइट, जब बॉटल सील होता है तो वहाँ पे हम लोग क्या दिखता है, सर्टन वेपर्स दिखाई देते हैं. तो वो वेपर्स किसके होते हैं, दैट वेपर्स आर नथिंग बट प्रेशराइज विथ अ मिक्सचर ऑफ, or you can say that vapors are nothing but the vapors of air and okay, so these pressures are nothing but the pressures due to air, carbon dioxide and water vapors. Okay, where did they come from? Okay, so जो ये एयर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है, ये तीनों का मिक्सचर लेके इंडस्ट्री में क्या किया जाता है, उन गैसेस को प्रेशराइज किया जाता है. किसके ऊपर, ये जो लिक्विड सरफेस आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस लिक्विड सरफेस के ऊपर. ओके, तो जब इस लिक्विड सरफेस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं हम लोग, तो हेनरी लॉ क्या बोलता है, हायर द प्रेशर हायर विल बी द सॉल्युबिलिटी. सो ड्यू टू दिस हाई प्रेशर क्या हो जाता है, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है. ओके, सो सॉल्युबिलिटी किसकी बढ़ जा रही है, गैसेस की बढ़ जा रही है. सो ड्यू टू दिस हाई प्रेशर सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, गैसेस की बढ़ रही है, और इसीलिए गैसेस क्या होते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं. कैसे डिसॉल्व होता है, जब ये गैस मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व हो रहे हैं, मतलब क्या कि दिस गैस मॉलिक्यूल्स आर पासिंग फ्रॉम वेपर स्टेट टू अ लिक्विड स्टेट इन कंडेंस फॉर्म, राइट. सो ये जो कंडेंसेशन प्रोसेस है, दैट इज नथिंग बट एक्सोथर्मिक रिएक्शन. रिमेंबर दिस, गैस वेपर्स का सॉल्यूबल होना या डिसॉल्व होना लिक्विड फेस में, दिस प्रोसेस इज नथिंग बट एक्सोथर्मिक प्रोसेस. एक्सोथर्मिक प्रोसेस मतलब क्या, कि यहाँ पर हीट रिलीज होती है. ओके, जब गैस मॉलिक्यूल डिसॉल्व होता है. ओके, सो इसीलिए क्या होता है, तो इंडस्ट्री में कैसे करते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं, और प्रेशर अप्लाई करने के बाद जब गैस डिसॉल्व हो जाती है उस लिक्विड के अंदर, तो उसके बाद क्या करते हैं, उसको सील कर देते थ्रू कैप. ओके, सो इसीलिए ये एयर टाइट कंटेनर हो गया. ओके, सो अभी यहाँ पे हम लोग को क्या देखने मिला कि मोर द प्रेशर, or we can say higher the pressure, more will be the solubility, and if lower the pressure, lower will be the solubility, right. समझ रहे हैं आप लोगों को. अभी यहाँ पर क्या ये कंटेनर सील है, तो उसके वजह से क्या होगा, ये गैस मॉलिक्यूल्स बाहर नहीं जा सकते. ओके, रिमेंबर दिस, गैस मॉलिक्यूल यहाँ से इवैक्यूएट हो सकता है क्या, नहीं. लेकिन जैसे ही हम कंटेनर ओपन करते हैं, वैसे क्या होता है, हम लोग को देखने क्या मिलता है, हम लोग को सर्टन पीस देखने मिलता है, राइट, बबल्स देखने मिलते हैं. तो ये बबल्स क्यों आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, अभी जैसे ही आप ये कैप ओपन करते हैं, कैप ओपन करने की वजह से क्या होता है, जो प्रेशर था, जो अटेन किया गया था प्रेशर थ्रू दिस सील्ड कैप, वो क्या हो जाता है, अब चला जाता है. अब क्या हो गया, प्रेशर अब इक्वल हो रहा है किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के. सो इसीलिए अभी प्रेशर कम हो रहा है. सो प्रेशर कम हो रहा है मतलब क्या, प्रेशर कम हो रहा है मतलब आपका ये जो डिसॉल्व गैस था उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी. रिमेंबर हेनरी लॉ क्या बोलता है
कि प्रेशर लो रहेगा, लोअर द प्रेशर, जो कि अभी हो रहा है जब हमने कैप ओपन किया, सो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी डिजॉल्व गैस की, लोअर हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसीलिए वो जो डिजॉल्व गैस है वो बबल्स के फॉर्म में बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा, और इसीलिए हम लोगों को बबल्स दिखाई देता है, या वी कैन से दैट वी सी सम पीस इन द बॉटल, राइट। ओके, again come to the topic. Now I hope that you know what is meant by Henry's law. Now let's just discuss what are the exceptions to Henry law. Okay, so exception of Henry law is what, certain gases like NH3, which is nothing but ammonia, and carbon dioxide, right? So certain gases like NH3 and CO2 do not obey Henry's law. Why this so? बिकॉज जो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड है, ये गैसेस जब लिक्विड सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होती है, नाउ इमेजिन कि आपका वाटर है और वाटर के ऊपर क्या किया है हम लोगों ने, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों गैसेस प्रेजेंट है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, राइट। तो हम लोग जब प्रेशर बढ़ा रहे हैं यानी इंक्रीज कर रहे हैं प्रेशर, तो क्या होगा, वो जो गैस लिक्विड सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है वो क्या हो जाएगा, अब डिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो क्या होना चाहिए कि गैस डिजॉल्व हो जाना चाहिए लिक्विड में, राइट, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होनी चाहिए। बट होता क्या है, जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं, व्हेन वी इंक्रीज द प्रेशर, दिस गैसेस which are nothing but ammonia or carbon dioxide undergoes water and reacts with water. After reacting with water, they form ammonium ion, which is nothing but NH4 plus ion, and hydroxide ion. Okay, and if carbon dioxide is dissolved in water, then it forms carbonic acid. Okay, so due to this reaction, there is higher solubility of ammonia and carbon dioxide, which is more, or we can say which is higher than expected. So that's why ammonia and carbon dioxide do not obey Henry law. Okay, so हम लोगों को expected जितना था उसके कंपेयर में हम लोगों को हाई वैल्यूज मिलती है, हाई सॉल्युबिलिटी मिलती है। क्यों ऐसा होता है, बिकॉज अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। ओके, so that's why they show higher solubility than expected by the Henry's law. So remember, this is the exception to Henry's law. Okay, so this is the exception. I hope this one point you will remember. So now let's go further. Factors affecting solubility. Now factors affecting solubility में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, राइट। अभी फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी मतलब क्या, अभी सॉल्युबिलिटी मतलब क्या, सॉल्युबिलिटी से एक दिमाग में सीधा क्या कंसेप्ट आता है कि सॉल्यूट को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिजोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, डिजोल्यूशन ऑफ सॉल्यूट इज नथिंग बट सॉल्युबिलिटी प्रॉपर्टी। ओके, सो यहाँ पे डिफरेंट फिनोमिना इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें से हम लोग दो मेन डिस्कस करने वाले हैं। इसमें पहला क्या है, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन, एंड द नेक्स्ट वन इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी। ओके, सो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में मतलब क्या कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का नेचर कैसा होना चाहिए, राइट। सो यहाँ पर प्रिंसिपल आता है लाइक डिजॉल्व लाइक का प्रिंसिपल। रिमेंबर दिस प्रिंसिपल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो लाइक डिजॉल्व लाइक का प्रिंसिपल, लाइक डिजॉल्व लाइक का प्रिंसिपल मतलब क्या, लाइक डिजॉल्व लाइक का मतलब कि पोलार सॉल्यूट पोलार सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होगा और नॉन पोलार सॉल्यूट नॉन पोलार सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होगा। रिमेंबर दिस। अभी पोलार सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होगा मतलब क्या, पोलार सॉल्यूट मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट जो है हमारा, सॉल्ट क्या है, NaCl, राइट। सो NaCl इज नथिंग बट पोलार सॉल्यूट। और वाटर क्या है हमारा, वाटर इज ऑल्सो अ पोलार सॉल्वेंट। कैसे, सॉल्ट इज Na+Cl-, सो दो पोल आ गए, सो इसीलिए वो क्या हो गया, पोलार सॉल्यूट हो गया। वाटर में भी क्या है, H2O, ऑक्सीजन इज पार्शियल नेगेटिवली चार्ज एंड हाइड्रोजन इज पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज। ओके, सो इसीलिए वाटर भी क्या हो गया हमारा, पोलार हो गया। सो ये भी पोलार है, ये भी पोलार है। सो दोनों अगर पोलार है तो क्या होगा, प्रिंसिपल क्या बोलता है कि लाइक डिजॉल्व लाइक। सो
पोलार डिजॉल्व्स पोलार, सो सॉल्ट इसीलिए वाटर में क्या हो जाता है, इजीली सॉल्यूबल हो जाता है। दूसरा अगर एग्जांपल लेंगे हम लोग तो शुगर इन वाटर का, तो शुगर भी क्या है, पोलार मॉलिक्यूल है, और वाटर अगेन क्या है, पोलार मॉलिक्यूल है। अभी शुगर पोलार है, वाटर भी पोलार है, तो लाइक डिजॉल्व लाइक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होगा, शुगर वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे शुगर इन वाटर जो कॉम्बिनेशन है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इन्वॉल्व है। ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग देयर इज हायर solubility of sugar in water. Okay, now next is non polar dissolves non polar, मतलब non polar solute non polar solvent में ही डिजोल्व होगा। अगर आप सोचोगे कि नॉन पोलर सॉल्यूट को नॉन पोलर सॉल्वेंट नॉन पोलर सॉल्यूट को पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व किया जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप ट्राई भी करके देख सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप सोचोगे कि मैं सॉल्ट को ऑयल में डिजोल्व करूँ, तो सॉल्ट ऑयल में डिजोल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑयल जो है, oil is a nothing but non-polar solvent, right? So oil is non-polar solvent and your salt is polar solute. So polar और नॉन पोलर का कॉम्बिनेशन ले रहे हो आप, राइट? सो इसीलिए क्या होगा, वो डिजोल्व होगा क्या, सॉल्ट नॉन पोलर सॉल्वेंट में या फिर ऑयल में, नहीं। समझा? सो नॉन पोलर सॉल्यूट ही नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होता है। एग्जाम्पल इज नैफ्थलीन डिजोल्व इन बेंजीन। सो नैफ्थलीन क्या है, नॉन पोलर सॉल्यूट है। आपका बेंजीन भी क्या है, बेंजीन इज ऑल्सो नॉन पोलर सॉल्वेंट। सो इसीलिए नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट, मतलब नैफ्थलीन क्या होगा, बेंजीन में डिजोल्व हो जाएगा। सेम कोलेस्टेरॉल, कोलेस्टेरॉल भी आपका नॉन पोलर सॉल्यूट है और बेंजीन आपका अगेन नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। अभी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी क्या होता है। ओके ओके, जस्ट लेट मी कंप्लीट वन मोर टॉपिक इज रिमेनिंग। ओके, सो अभी ये पोलर डिजोल्व्स पोलर और नॉन पोलर डिजोल्व्स नॉन पोलर, राइट? तो ये पोलर डिजोल्व्स पोलर, अभी ये पोलर पोलर को ही क्यों करता है, नॉन पोलर को ही क्यों करता है, पोलर नॉन पोलर को क्यों नहीं कर रहा है, या फिर नॉन पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज जब हम लोग डिजोल्व करते हैं, सपोज हम लोग डिजोल्व कर रहे हैं किसको, सॉल्ट को, राइट? सपोज हम लोगों ने क्या किया, NaCl को डिजोल्व किया। सो NaCl को अगर हम डिजोल्व कर रहे हैं, सो हम लोग सपोज क्या कर रहे हैं, NaCl को डिजोल्व कर रहे हैं। सो NaCl में 3 टाइप्स ऑफ इंट्रैक्शन होगा, राइट? सो क्या होगा, NaCl इज नथिंग बट व्हाट, पोलर सॉल्यूट। तो 3 कौन कौन से टाइप के इंट्रैक्शन हो सकते हैं, एक तो सॉल्यूट सॉल्यूट, राइट? कौन कौन से इंट्रैक्शन होंगे, एक तो सॉल्यूट सॉल्यूट इंट्रैक्शन होगा, दूसरा सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन होता है, और तीसरा सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंट्रैक्शन होता है। ओके, तो ये जो सॉल्यूट सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट और ये जो सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंट्रैक्शन है, ये तीनों का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कंपेरेबल होता है। तो कंपेरेबल होने के वजह से क्या होता है, ये पोलर जो मॉलिक्यूल है वो पोलर सॉलिड में डिजोल्व हो जाता है, और सेम नॉन पोलर सॉल्यूट क्या हो जाता है, नॉन पोलर सॉलिड में डिजोल्व हो जाता है। बट अगर आप क्रॉस कॉम्बिनेशन लोगे, यानी सॉल्ट को डिजोल्व करने की कोशिश करोगे ऑयल में, तो क्या हो जाएगा, जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो इंट्रैक्शन है, मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी नॉट इक्वल टू सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन। दैट्स व्हाई सॉल्ट एंड योर नॉन पोलर सॉल्वेंट डज नॉट डिजोल्व। ओके, तो इसीलिए उसका डिजोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता है। ओके, रिमेंबर दिस। सो दिस इज द मेन रीजन व्हाई polar dissolves polar, non-polar dissolves non-polar, and why polar does not dissolve in non-polar solvent. Okay, now let's go to the next effect of temperature on solubility. अभी temperature का effect क्या होता है? So effect of temperature on solubility is simple. ये आप लोगों को पता भी होगा कि if we increase the temperature, the solubility will increase, and if we decrease the temperature, the solubility will decrease. Means temperature is directly proportional to solubility. Okay, so remember this, temperature is directly proportional to solubility. अभी देखते हैं यहाँ पे ये फिनोमिना कैसे हो रहा है। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज KCl dissolves in water by endothermic process. Okay, so अभी endothermic process मतलब क्या, so endothermic process मतलब so KCl dissolves in water by endothermic process. अभी endothermic process है ये,
सो एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस में हीट क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। सो KCl जब डिजोल्व हो रहा है वाटर में तो वो क्या कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो जा रहा है, डिजोल्व हो जा रहा है वाटर। सो अभी अगर हम लोगों को KCl की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करनी है वाटर में, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा। अभी KCl का डिसोल्यूशन वाटर में कौन सा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस मतलब क्या, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट हो रहा है। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे कि KCl को हेल्प होगा डिसोल्यूशन में या फिर उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। सो इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, if we increase the temperature, the solubility of KCl will what, increase, remember। So if we increase the temperature, the solubility of KCl will increase। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि KCl क्या कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, और हम जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उसको क्या हो रहा है, हीट और मिल रहा है। ओके, सो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली हेल्प कर रहे हैं, जिसके वजह से क्या होगा, वो जल्दी जल्दी डिजोल्व हो जाएगा वाटर में। So that's why if we increase the temperature, the solubility of KCl will increase. Now next example is if we dissolve calcium chloride or lithium sulfate monohydrate in water, then this process is exothermic process. Okay, so dissolution of calcium chloride and lithium sulfate monohydrate in water is exothermic process. So what is mean by exothermic process? So exothermic process means that these solutes dissolve in water by release of heat. Now what is meant by release of it? कि अगर हम कैल्शियम क्लोराइड और लिथियम सल्फेट को, अगर हम कैल्शियम क्लोराइड और लिथियम सल्फेट को डिसॉल्व करेंगे तो वो क्या करते हैं, हीट रिलीज करते हैं। मतलब उनको टेम्परेचर हाई चाहिए या लो चाहिए, उनको टेम्परेचर लो चाहिए, बिकॉज वो क्या कर रहे हैं, हीट को रिलीज कर रहे हैं, दूर भाग रहे हैं टेम्परेचर से। सो अब हम लोग क्या करेंगे कि इनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी वाटर में, ऐसा क्या करना पड़ेगा, सो वी विल डिक्रीज द टेम्परेचर, राइट, क्योंकि इनको भी क्या चाहिए, टेम्परेचर कम चाहिए। सो इफ वी डिक्रीज द टेम्परेचर, द सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड एंड लिथियम सल्फेट मोनोहाइड्रेट विल इंक्रीज। व्हाई दिस, बिकॉज dissolution of calcium chloride and lithium sulfate in water is exothermic process। Okay, so release of heat is taking place, so if we decrease the temperature, their dissolution will increase or their solubility will increase। Okay, now next, अभी यहाँ पे one rule I have to explain to you that this solubility and exothermic or endothermicity is not directly proportional। Okay, so remember this कि solubility और endothermicity या exothermicity का कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। रिलेशनशिप किसका है, टेम्परेचर और solubility का ही डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ओके, सो वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। अभी इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, the dissolution of calcium chloride in water is an exothermic process। Okay, so dissolution of calcium chloride in water is exothermic process। exothermic process मतलब क्या, exothermic process मतलब release of heat, right। so release of heat मतलब क्या, release of heat मतलब हम लोगों को टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा कि इसका solubility increase हो जाए, so हम लोग को टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, right। so we have to decrease the temperature। okay, so if we will decrease the temperature, the solubility of calcium chloride will increase, right। Or next is ammonium nitrate। Okay, so if dissolution of ammonium nitrate in water, dissolution of ammonium nitrate in water is an endothermic process। endothermic process मतलब क्या, absorption of heat, right। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसकी solubility increase हो जाएगी, so we have to increase the temperature, right। so we have to increase the temperature, then only the solubility of ammonium nitrate in water will increase। okay, so expected क्या था कि कैल्शियम क्लोराइड का हम लोग अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी वाटर में, और अमोनियम नाइट्रेट के लिए अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी वाटर। ओके, सो अभी यहाँ पे देखो ऑब्जर्व क्या होता है, that if we dissolve calcium chloride and ammonium nitrate in water and increase the temperature, the solubility of both the solute increases with increase in temperature। okay,
सो दिस इज अ एक्सेप्शन, राइट। एक्सपेक्टेड क्या था कि एक का डिक्रीज करने पे इंक्रीज होना चाहिए सॉल्युबिलिटी और दूसरे का टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होना चाहिए, बट हो क्या रहा है यहाँ पे, इंक्रीज करने पे, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे दोनों की सॉल्युबिलिटी क्या हो जा रही है, इंक्रीज हो जा रही है। सो रिमेंबर दिस दैट देयर इज अ direct relation between temperature and solubility, but there is no direct relationship between solubility and exothermicity or endothermicity. Okay, so next we will go for this graph. In this graph, as you can see, so यहाँ पे आप लोगों को तीन कर्व पे फोकस करना है बेसिकली। सो पहले यहाँ पे देखते हैं हम लोग, फर्स्ट सी द कर्व्स ऑफ NABR, राइट। सो हम लोग NABR, KCl और NaCl पे पहले फोकस करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं सॉल्युबिलिटी को y एक्सिस पे प्लॉट किया है और x एक्सिस पे टेम्परेचर को प्लॉट किया। ओके, तो यहाँ पे ये रहा आपका ओरिजिन, ये आपका ओरिजिन है, ये आपका मैक्सिमम है, राइट। सेम यहाँ पे ये आपका y एक्सिस के लिए ओरिजिन है और ये आपका यहाँ पे मैक्सिमम है। ओके, तो यहाँ पे NABR, KCl और NaCl के लिए अगर हम लोग ग्राफ देखेंगे, कर्व देखेंगे, तो यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, the curve for NABR starts from here and ends here, right? And if you see the curve for KCl, then it starts from here and it ends over here. And for NaCl, the curve starts from here and ends here. अभी ये तीनों कर्व को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो क्या देखने मिल रहा है आप लोगों को, तो यहाँ पे ये ऑब्जर्व हो रहा है कि ये जो सॉल्युबिलिटी है और टेम्परेचर है, अभी यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, व्हेन वी गो टूवर्ड्स दिस साइड, ओके, जब हम लोग इस साइड में मूव कर रहे हैं, तो इस साइड में मूव कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, सॉल्युबिलिटी भी क्या हो रहा है, सॉल्युबिलिटी यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा ही इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो सॉल्युबिलिटी किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, इस डायरेक्शन में, राइट। सो इस डायरेक्शन में सॉल्युबिलिटी हमारा मूव हो रहा है। ओके, सो क्या होगा यहाँ पे, अभी देखो ये कब यहाँ से स्टार्ट हुआ, जीरो से और यहाँ तक गया। ओके, सेम एप्लीकेबल KCl के लिए देखो, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक ही गया, और NaCl के लिए अगर हम लोग देखें तो यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ तक ही गया। सो व्हाट वी ऑब्जर्व दैट फॉर द NABR, KCl and NaCl, if we increase the temperature, we observe what we observe, there is little increase in solubility of these solutes, right. If we increase the temperature, there is little increase in the, or we can say small amount of increase in the solubility of NABR, KCl and NaCl, right. Now next, if we focus on KNO3 and NaNO3, अभी NaNO3 और KNO3 के लिए अगर हम लोग फोकस करेंगे तो यहाँ पे क्या दिखेगा हम लोगों को, अभी KNO3 के लिए ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये कर्व यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ से कहाँ तक गया है, ये कर्व यहाँ तक गया। ओके, और सेम अगर हम लोग देखेंगे KNO3 के बाद NaNO3 के लिए, तो ये कर्व कहाँ से चालू हुआ है, यहाँ से चालू हुआ। ओके, सो if you see the curve for KNO3 and NaNO3, that what we observe, that if we increase the temperature, there is a high increase in solubility of KNO3 and NaNO3, right. मतलब टेम्परेचर हम जितना बढ़ाएंगे solubility of KNO3 और NaNO3 उतनी ही बढ़ेगी। ओके, so there is a large rise in the curve of, or we can say large rise of solubility of KNO3 and NaNO3, right. And if we see the KVR का कर्व अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से चालू हुआ है, राइट, यहाँ से यहाँ तक गया। ओके, सो KVR के लिए भी यहाँ पे क्या हो रहा है, लिटिल राइज ऑफ सॉल्युबिलिटी, राइट। सो टेम्परेचर अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो थोड़ा सा हम लोगों को सॉल्युबिलिटी क्या देखने मिलेगा, ज़्यादा देखने मिलेगा, किसके लिए, KVR के